टू संतोष सर क्लासेस एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे IBO 04 एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीड्योर्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स जिसको आपको रिवाइज करना है फॉर दिस जून एग्जाम एंड let's straight away get back to the important questions, but before that I would request all my viewers to kindly subscribe this educational channel so that that will help me for moral boosting and also share it to your friends. And these are my latest study materials on IBO 04. We will go unit wise. From unit 1, you should revise this: what are the important objectives of import export policy of the government of India. So this is one very common question. And the next question, let's see, explain briefly the role of exports in the economic development of a country. This is in fact a very common questions जो बार बार काफ़ी टाइम एग्जाम्स में स्ट्राइक किया है ये क्वेश्चन कि जो एक्सपोर्ट्स होते हैं कंट्री से तो वो किस तरीके से हाउ इट हेल्प्स टू ग्रो एंड डेवलप द डोमेस्टिक इकोनॉमी. एक यहाँ से आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं ऑन डीम्ड एक्सपोर्ट्स. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट आर द कंडीशंस और एलिजिबिलिटी फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट यूनिट. यूनिट 2 देखते हैं. एंड यूनिट 2 में व्हाट आर इनको टर्म्स and explain the various types of Incoterms. When you will analyze the previous questions, so you will see that this question also came quite a lot of times in the exam. लेकिन ये question little bit tough to learn because इसमें ऐसे बहुत सारे ये it's like this type of these are the different types of Incoterms. So basically ये याद करना it's very difficult, but anyway you can get this question. You can learn the difference between FOB and CIF contract. This question is also very important one. Let's move on to unit 3. Describe the list of documents required for export custom clearance. So whenever we do exports, we know that custom formalities are there, and to clear those formalities, an exporter needs to have all these steps, like preparing invoice, then custom packing list, country of origin, commercial invoice, shipping bill is one of the most important document. So ye there are 12 type of these important documents which you need to expand in your answer. One of the very important question for the exam. Okay, the next one is explain briefly the documents required for importing goods to India. Like the previous question was on exports and this is on imports. Okay, let's move on to the next unit, unit 4. And the first question you should revise for short note: EDI, electronic data interchange. And you might get one short note to write on this. This is also a very important topic. One more short note, that is on EDIFACT. So this question also very very important one for short questions. One more question you can revise, that is the WAN, value added network, and why it is important in the international trade. You might get this in the long questions. Okay, one more difference that you should revise for the exam is the difference between EDI and e-commerce. So this question is also very important one. Okay, unit 5 से देखते हैं. जो यहाँ से आपको करना है, क्योंकि प्रोसेसिंग ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर है. एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द C&F एजेंट्स. one of the very favorite question of IBO 04. क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स के डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जाम्स. डू रिवाइज दिस प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट यूनिट से है, दैट इज टर्म्स ऑफ पेमेंट. एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पेमेंट इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड. सो व्हेनेवर वी डू अ फॉरेन ट्रेड, देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन पे टू द इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स. सो ये 5 मेथड आप मेंशन कर सकते हैं, इनको एलेबोरेट कर सकते हैं अपने आंसर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. LOC, व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट and why it is important in an international trade. We know this, the importance of this document. Without this,
I don't think international transactions can take place. सो यहाँ से भी मस्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम्स में. यूनिट 7 की बात करते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशंस में. यहाँ पे आप फीमा पे एक शॉर्ट नोट कर सकते हैं, एंड वाई फीमा रिप्लेस्ड फेरा एक्ट. इनफैक्ट ये दिसंबर में भी आया था फीमा पे, तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आया था. मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट इट इन शॉर्ट नोट्स. द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट 8, export finance. And from here, what are the various sources through which an exporter can raise finance for international trade? Now ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के लिए मिल सकता है. एंड दीज आर द टू कैटेगरीज like pre shipment finance and post shipment finance through which an exporter can raise money. So again, like these are subdivided into many sources, like प्री शिपमेंट को डिवाइड कर सकते हैं पैकिंग क्रेडिट में, एडवांस्ड अगेंस्ट इंसेंटिव्स, एंड प्री शिपमेंट क्रेडिट इन फॉरेन कंट्रीज. तो अगेन इनको आपको एक्सप्लेन करना है, इनकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आप लर्न कर सकते हैं. एंड पोस्ट शिपमेंट में ये कुछ 5 टाइप के ये पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस हैं, जहाँ से एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को हेल्प मिल सकती है फाइनेंशियली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिम बैंक से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ये आपको लर्न करने हैं फॉर द एग्ज़ाम. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के ऊपर है, एंड यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है 100%, आई एम श्योर. ओके, नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं. ECGC, दैट इज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. And what are the different types of policies that are offered in this scheme? As we know कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम प्रोवाइड करती है फॉर इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स. एंड ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स हैं जो ऑफर करती है. ये आपको शॉर्ट नोट में भी मिल सकते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्ज़ाम. जैसे कि ये स्टैंडर्ड पॉलिसीज़, स्पेसिफिक पॉलिसीज़ पे हमेशा क्वेश्चन होता है. financial policies and special schemes. कभी कभी you might get difference to write on any two of these policies. Very important one for the exam. Next question, next unit से next unit के तरफ चलते हैं. And यहाँ पे unit 11, preparing for the shipment. Now from this unit you should revise the difference between linear shipping, liner shipping and tramp shipping. तो ये difference काफ़ी टाइम एग्जाम्स में स्ट्राइक करता है. And explain the different types of tramp chartering. This question is also very very important for the exam. And again the different types, जैसे कि यहाँ पे voyage charter, time charter and bareboat charter. तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल सकता है, बेसिकली ऑन द वॉइस चार्टर एंड टाइम चार्टर. कभी कभी वॉइस चार्टर टाइम चार्टर पे आपको डिफरेंसेस भी पूछ सकते हैं. सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एंड दिस वन, discuss the various methods of quality control and inspection in international trade, and also mention the significance of self-certification. Sometimes the exporter has to give this self-certification that whatever I am exporting, they are all up to international standards. So इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है. एक और आप शॉर्ट नोट कर सकते हैं फॉर ISO 9000 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे है. ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम. And these are the different benefits of or importance of ISO 9000 standards. ये भी standards and quality के ऊपर ही होता है. And next very important question, that is what is containerization, and state its advantages and disadvantages. This question is also a must preparation for this coming exam. Unit 12 की बात करते हैं, कार्गो इंश्योरेंस पे है. And from this particular unit you should know what is cargo insurance, and explain the different types of cargo insurance used in international trade. So you can write about the need for this, and these are the different types of cargo insurance policies which you can describe in your answer. Okay, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यूनिट 13 से है,
and explain the stages of shipment for exports in international trade, and also discuss the procedures of custom clearance of export by sea and by air. तो यहाँ पे एक्चुअली 3 पार्ट है क्वेश्चन के। एक तो आपको सबसे पहले लिखने हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके प्रोसीड्योर्स क्या होते हैं, एंड जो नेक्स्ट है दैट इज़ अगर आप सी, इफ़ यू आर यूजिंग सी एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, then what are the documents required and what are the stages involved in it. Okay friends, next question देखते हैं, what are the methods, different methods available for settling disputes in international trade. As we know कि wherever there is trade there may be disputes, and these are few methods available to settle this. Like one is the litigation, that is court procedure. The other is arbitration, that is by mutual understanding और थ्रू मीडिएशन भी। यूनिट 15 से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं फॉर द एग्जाम, डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क सेटअप बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किए हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने 11 इंस्टीट्यूट्स को मेंशन किया है, जैसे EPC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, कमोडिटी बोर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिम बैंक एज वी नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ECGC, ये चीज़ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन टू सेटल डिस्प्यूट्स। सो ये पहले के जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, सो दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। ओके, आगे चलते हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, एंड यूनिट 16 से देखते हैं, explain the various export promotion measures taken by the government to promote exports. फ्रेंड्स, ये कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स हैं जो इंडिया ने लिए हुए हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, जैसे कि EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट हाउसेस, ड्यूटी ड्रॉबैक्स। तो काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड यू शुड ऑल्सो नो अबाउट दिस एज एन इंडियन। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, डिस्कस द वेरियस फिजिकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स। तो ये कुछ फिजिकल इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है टू इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स। यूनिट 17 से आप ये शॉर्ट नोट कर सकते हैं ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। एक और स्कीम है जहाँ लाइक ड्यूटी रेमिशन स्कीम, ये भी टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स दिस स्कीम्स आर यूज्ड। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको रिवाइज करने हैं इन दिस IBO 04 फॉर दिस कमिंग एग्जाम, and I hope you will be that this video is going to be helpful for this exam, and thanks for watching. A very best of luck for the exam.